one of the most important questions that many of we think of, like what are the benefits of contributing in GSOC? सामने जो बैठा है उसने गूगल क्रैक कर रखा है, तो फिर हाँ, रिजल्ट 5 मिनट लेट आया था, तो मैं बेड पे चेक बैठा हुआ था, मैं चेक करा, रिजल्ट नहीं आया, तो मुझे लगा कि रिजल्ट नहीं आया मतलब मेरा नहीं हुआ है. आई एम गेटिंग अ स्टाइपेंड फॉर वर्किंग दिस विच इज़. If a person wants to start from scratch, then what would be your suggestion or advice that you will give? And if you would be going to start from scratch again, how would you be starting? उनको पता था कि रिजल्ट आने वाला है आज, उन्हें मैंने बस एक शब्द से बताया, मम्मी हो गया. So hello guys, welcome back to my channel, and today's video is going to be super helpful, especially if you are aiming to crack GSOC 2026. Questions like when to start, what to focus on, and how to approach might be on your mind. Well, don't worry, we are going to cover it all with someone special. Meet Sahad Gupta, a first year student at Scalar School of Technology, my classmate who has cracked GSOC in his first year. Yes, you heard it right. He's into coding, building startups, and even working on an app for Vision Pro, and the list goes on. So if you're someone who wants to crack GSOC, so make sure you watch the video till the end. My name is Lakshya Mewada. I'm a first year undergrad at Scalar School of Technology, and without any further delay, let's get started. So hello Sahad. हेलो. So करें शुरू? हाँ जी. So first question, what is GSOC and why should we contribute in it? Okay, so GSOC stands for Google Summer of Code. It is an open source program which is organized by Google every year in summer, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आती है और दे लुक फॉर टैलेंट, पीपल, स्टूडेंट्स, वॉट एवर हूएवर वांट्स टू कंट्रीब्यूट, ताकि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स सॉल्व कर सके. और इट्स जस्ट फॉर द ओपन सोर्स वर्ल्ड जो हम कहते हैं जिस चीज़ को, उसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहे. दैट्स इट. Okay, so like when you started, so how did you choose an organization and when you started contributing in it? I started looking for organizations back in November, and like मैंने पहले फिगर आउट किया कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन से मैं चाहता हूँ काम करना, इट्स कौन से रेजोनेट कर रही है मेरे काम से और मेरे टेक स्टैक से और मेरे एक्सपीरियंस से. तो मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टलिस्ट करी, जैसे उसमें से एक क्रोमियम था जिसमें आखिर में सिलेक्शन हुआ मेरा, एक ऑसी था, एक शुगर लैब्स थी. तो इट वाज मोर लाइक कि मैं वहाँ पे जाके कंट्रीब्यूटर से बात कर रहा हूँ. और तो इट ऑल स्टार्टेड विथ in November. It depended mostly on my experience and कौन से एप्लीकेशन ऐसे हैं जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो फिर वैसे चूज़ कर लिया और हो गया. Okay, so what was the path that you followed? There is no specific path. Like no road map, nothing like that? नहीं. अगर हम ऐसा कुछ होता है तो फिर वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को. सो ओपन सोर्स एक ऐसी कम्युनिटी है, इट ओपन सोर्स ए कम्युनिटी जहाँ पे सब लोग आके अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ पे वो चाहते हैं बेटरमेंट हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऐप यूज़ करते हो और उस ऐप में आपको लगता है कि कोई खराबी है और समझो वो ऐप ओपन सोर्स है, तो आप जाके खुद वहाँ पे उस ऐप के अंदर दे सकते हो कि मुझे ये कंट्रीब्यूशन चाहिए, मैं इसमें कंट्रीब्यूट चाहता हूँ करना. तो एक जर्नी है. इट इज़ नो स्पेसिफिक रोड मैप, नो स्पेसिफिक एनी चैलेंज है, कोई टिक मार्क नहीं है, कोई बेंच मार्क नहीं है कि ये करना पड़ेगा. इट इज जस्ट टू कन्वे एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी. Okay, so like when you started, so before you started, what were the tech stacks or tech skills you have already mastered with? Okay, the word master is very, I would not give myself, but I have experience in working in various tech stack since last 4 to 5 years. I have been working as a freelancer or as a contractor. So I'm proficient in web development, Mate, Merge-Stack, Next.js, or any other like JavaScript based frameworks. I am proficient in them. Also, I have contributed into mobile development, so I know a little bit of Swift and Java. I also have a little bit of Kotlin. Also Flutter and React Native, be a part of it. Also I've started journey contributing into and working on my AI skills. So yeah, these are the tech stack which are part of my portfolio or whatever you can say. Okay, so like जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी तुम काम कर रहे हो उसमें क्या टेक स्किल्स रिक्वायर्ड है? Okay, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन मेरा सिलेक्शन हुआ है क्रोमियम,
उसमें मेरा जो प्रोजेक्ट है वर्चुअल प्रिंटर एप्लीकेशन, उसमें हम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं फॉर प्रिंटर्स हेल्पिंग के लिए। वो QA टीम्स और जो डेवलपर्स होते हैं उनके यूज़ में आएगा, ताकि वो डीबग कर सके कोई भी इशू प्रिंटर्स के अंदर आ रही है। तो उसका टेक स्टैक है, इट इज़ मोर टूवर्ड्स द हार्डवेयर कंपोनेंट। तो आई एम यूजिंग Kata और आई एम यूजिंग JIPP protocols. One of the most important questions that many of we think of, like, what are the benefits of contributing in GSOC? So unlike open source जिसमें it's not a benefit, it's benefit for the community, GSOC के पास कुछ और अपने फ़ायदे हैं। First of all, if you are among the GSOC contributor, तो फिर it gives a certificate और a check mark to you कि भाई इस बंदे ने काम कर रखा है इस फील्ड के अंदर एंड ही इज़ एक्सपीरियंस इन दैट। तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि फॉर मी इट्स ऐसा है कि इतने सब लोगों के बीच में एक हूँ मैं जो जानता है कुछ थोड़ा मोड़ा और मुझे आता है, मैं काम कर सकता हूँ। तो इट्स मोर लाइक अ बेंचमार्क टिक फॉर मी। फिर उसके अलावा कंपनीज डू लुक एज दिस एज अ बिग बेनिफिट कि बंदे ने इसको क्लियर कर रखा है। सो वन ऑफ देम इज दैट आई एम गेटिंग अ स्टाइपेंड फॉर वर्किंग दिस विच इज़ $1,500. Okay, that's nice. या फिर आई एम ऑल्सो गेटिंग मेंटरशिप डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल हु आर वर्किंग एट गूगल। लाइक मेरे तीनों मेंटर्स जो हैं, क्योंकि मैं क्रोमियम में काम कर रहा हूँ, तो क्रोमियम इज़ अ सब्सिडरी ऑफ गूगल। तो जेना मैम, नेथन सर और गॉर्डन सर तीनों ही लाइक गूगल के अंदर काम करते हैं, कैलिफोर्निया में है तीनों। तो जब भी मीटिंग्स होती है, बातचीत करनी होती है, तो सिर्फ प्रोडक्ट पर ही नहीं जो बना रहा हूँ मैं, उसके बियॉन्ड भी अगर कुछ डाउट्स होते हैं मुझे इन जनरल, जो कि होंगे सबको कि सामने जो बैठा है उसने गूगल क्रैक कर रखा है, तो फिर हाँ बातचीत करते हैं थोड़ी सी। तो कुछ और होता है तो आई कैन आस्क देम। तो हाँ, मोटा मोटा 3 बेनिफिट्स हैं ये जो मुझे लगता है कि इससे मिल रहा है। Okay, so what was the feeling like? How do you feel after cracking GSOC? मतलब, yeah, when you get that thing, That congratulations. is some unnatural feeling. For 3-4 minutes I was just stuck. मैं अपने बेड से उठा, मैं बेड पे चेक कर रहा था, मैं रिजल्ट 5 मिनट लेट आया था, तो मैं बेड पे बैठा हुआ था, मैं चेक कर रहा, रिजल्ट नहीं आया। तो मुझे लगा कि रिजल्ट नहीं आया मतलब मेरा नहीं हुआ है। तो मैं लेटा हुआ था, जैसे रिजल्ट आता है मैं नोटिफिकेशन से पढ़ता हूँ, वहाँ पे एक पैरा वर्ड पढ़ा मैंने, कंग्रेचुलेशंस, और GSOC का मेल ID थी। मैंने फ़ोन रखा, देखा भी नहीं कौन सी उसमें सिलेक्शन हुआ है मेरा, क्योंकि मैंने 2-3 और जगह पे कर रखा था। मैंने फ़ोन रखा एंड आई वॉज कम्प्लीटली स्टक फॉर 2-3 मिनट्स। उसके बाद आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट मेरे मम्मी को। उनको पता था कि रिजल्ट आने वाला है आज, उन्हें मैंने बस एक शब्द से बताया, मम्मी हो गया। सो शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि बिकॉज शी नो कि मैं बहुत रूट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। फिर उनसे थोड़ी बहुत बात करी, फिर फ़ोन रखा, फिर मैंने अपने मेंटर को फ़ोन किया, मिनाल सर को फ़ोन किया। मिनाल सर को फ़ोन करके सर ने मुझे उस दिन सुबह दोपहर में पूछा था कि रिजल्ट आया नहीं अभी तक, तो उन्हें लगा था दोपहर में 12 बजे आने वाला है, बट वो रात के 12 बजे था। तो उन्होंने बोला, पूछा था तो उस सेम डे, फिर रात को उनको फ़ोन करके बोला कि सर रिजल्ट आ गया और GSOC में हो गया। तब तक मैं देख चुका था कि कौन सी किस में हुआ है, ताकि बता सकूँ किस में हुआ है मेरा सिलेक्शन। तो फिर उनको बताया एंड ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी। ही स्प्रेडेड द वर्ड टू अदर फैकल्टी मेम्बर्स, क्षितिज सर एंड एवरीवन। मैसेज आता था ग्रुप के अंदर कि क्लियर हो चुका है सब। सो We all were happy when we saw that. तो वो फीलिंग, फिर मैंने फ़ोन रखा, सबसे बात हो गई। फिर मैं एक रूम में गया जहाँ पे सब दोस्त बैठे हुए थे, सब गेम खेल रहे थे, मैं भी गेम खेलने वाला था। अगर रिजल्ट नहीं आता मेरा तो मैं जाके सबसे बात करता हूँ, सबको मैं बस खड़े होकर बीच में खड़े होकर बोलता हूँ कि गाइस GSOC हो गया। एंड एक जोर से पूरे एक रूम में एक हूटिंग की आवाज़ थी कि लाइक Shout of Whaler. या शॉक ऑफ वेल, यस दैट्स व्हाट वी कैन से। Nice. सो इट्स नाइस। तो अब जैसे कि कोई इंसान है, मतलब, like if a person wants to start from scratch, then what would be your suggestion or advice that you will give? And if you would be going to start from scratch again, how would you be starting? ओके, सिंस आई सेड कोई रोड मैप नहीं है, कोई बेंचमार्क ऐसे टिक करने वाली चीज़ें नहीं है, चेकलिस्ट नहीं है कि ये कर लोगे तो हो जाएगा। तो इट्स मोर लाइक कि मैं, अगर मुझे लेक्चर भी देना है तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो अगेन। सो कोई भी जिसको, आपके जो भी टेक स्किल्स हैं, आपको जो भी टेक स्टैक के अंदर नॉलेज है, आप उसको रिफाइन करो
और डेप्थ में जाओ, मोर देन जस्ट नोइंग द ऊपर ऊपर से चीज़ें आती है, थोड़ा सा उसमें और डीप डाउन करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटरनल्स। उसके बाद में ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटरनल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ होल, कि क्या होती है। ये सब आप चीज़ें एक बेसिक क्लियर है आपके पास, देन यू कैन गो ऑन टू सर्च कि आप कौन से ऐप आप खुद यूज़ करते हो और जो ओपन सोर्स है, एंड देन लुक फॉर द ऐप्स एंड देन लुक कि आप कहाँ चाहते हो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब हैं और बेटर हो सकती है। इसी बियॉन्ड GSOC ओपन सोर्स एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। पीपल आर कन्फाइनिंग द एंटायर ओपन सोर्स इनटू GSOC। वो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, तो मैं प्रमोट करूँगा उस ओपन सोर्स चीज़ को बी अ पार्ट ऑफ इट, बिना किसी स्टाइपेंड के, बिना किसी मोटिवेशन के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द बेटर वर्ल्ड आप कंट्रीब्यूट करो। उस जर्नी में आपको एक टाइम ऐसा आएगा जब GSOC आने वाला होगा, तब आप एक स्पेसिफिक एक चूज़ कर लेना कि आपको किस में ज़्यादा अच्छा करने की, उसमें आप उनसे बात करना, ट्राई टू टॉक विद मेंटर्स एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि मेंटर्स ही वो लोग हैं जो आपको बताएंगे कि आप कहाँ सोच रहे हो, किस तरह सोच रहे हो, और एट द एंड सिलेक्शन वही करेंगे। तो अगर आपकी बात अच्छी है, वो जानते हैं आपको पहले से, तो इट्स +1। बस एक साइकिल है, डोंट गेट अपसेट और वेरी हाइप फ्रॉम द वर्ड GSOC, अल्दो मैं खुद हुआ था, क्योंकि नहीं होना चाहिए, बट उस चीज़ के बियॉन्ड भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दैट। GSOC एक रास्ते में एक स्टॉप था, वहाँ पे हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इट्स स्टिल यू आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द एंटायर जर्नी। तो सो लाइक अगर कोई 2026 में अगर GSOC क्रैक करने का सोच रहा है, तो व्हाट शुड बी द रिसोर्सेज दैट ही मस्ट फॉलो, और व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस दैट ही मस्ट लुक फॉर, एंड व्हेन टू स्टार्ट? अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट जो मैंने पहले कहा था, कोई स्पेसिफिक रोड मैप नहीं है, कुछ वो नहीं है, बट एक सिंपल एक चीज़ फॉलो कर सकते हो। ट्राई टू बी कॉन्वर्जेशनल विथ वॉट एवर रेपो या फिर वॉट एवर प्रोजेक्ट यू वॉन्ट टू वर्क ऑन। यू कैन स्टार्ट राइट नाउ, डोंट वेट फॉर एनी थिंग कि भाई GSOC अभी शुरू हुआ है, नेक्स्ट ईयर वाला नेक्स्ट ईयर बाद आएगा। कोई बात नहीं, आपको सीखना है, आप सीखते रहोगे, और बहुत प्लस है ही अगर आप अभी से शुरू कर रहे हो तो इट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। हाउ मेनी मोर PRs जितने आप कर सकते हो, इट्स जितना आप करोगे उतना दिखेगा उन्हें कि कोई इंसान है इस नाम का जो चाहता है कंट्रीब्यूट करना, और उनको दिखेगा कि आगे जाके कुछ कर रहे हैं तो उसको चूज़ करेंगे हम। सेकेंड चीज़, अगर कोई एक स्पेसिफिक रिसोर्सेज वगैरह तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट यू कैन लुक आउट इनटू चैनल्स जो होते हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के। जैसे ऑसी का एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, तो वहाँ मैं बहुत एक्टिव था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो ओपन सोर्स कम्युनिटी के अंदर है, जिनसे बातचीत करता था, मेंटर्स थे। वहाँ से आपको चीज़ें मिलेंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो एक वहाँ पे आपको एक हर स्पेसिफिक रेपो का, हर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी, कैसे काम करना है, सेटअप कैसे करना है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, व्हाट इज़ द टेक स्टैक, हाउ टू सॉल्व, लाइक एवरीथिंग। तो एक स्पेसिफिक आप, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो चीज़ें खुद यूज़ करते हो, और हम इतनी चीज़ें यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, आपको लगता है कि वो उसका जो ओपन सोर्स वर्जन है या फिर उसका ओपन सोर्स अगर वो चीज़ है, आप उसमें कुछ बेटरमेंट ला सकते हो, तो ट्राई टू कंट्रीब्यूट इन दैट। इफ़ नॉट, देन लुक फॉर ओपन सोर्स जो प्रोग्राम्स होते हैं बियॉन्ड GSOC। जैसे फॉस एशिया का भी एक प्रोग्राम होता है, MLS फेलोशिप भी होती है, देयर इज ऑल्सो LFX प्रोग्राम। तो आपको जहाँ इच्छा हो, ट्राई टू लुक फॉर प्रोग्राम्स या फिर ट्राई टू लुक फॉर ऑर्गेनाइजेशन जो आपके सेम आइडिया पे मैच कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है उनका प्रोडक्ट, आप खुद उसका चाहते हो करना, तो उसमें कंट्रीब्यूट करो, उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाओ। एट द एंड इट्स जस्ट फॉर द कम्युनिटी। तो या फॉर द सेक ऑफ द बेटर वर्ल्ड। फॉर द सेक ऑफ द बेटर वर्ल्ड। So that's all, and now we have learned very much about GSOC, and सौहार्द ने बहुत कुछ बताया एंड काफ़ी मज़ा भी आया। एंड अगर आप भी जैसे सौहार्द की तरह GSOC क्रैक करना चाहते हैं, तो all you have to do is just start. And if you have any queries and any questions, then just comment down below. And if you want to give entrance exam for Scaler, then don't forget to use my referral mentioned in the description box below. And yeah, till then, see you.